और कोई टीम मेंबर्स ज्वाइन कर रहे हैं ओम? जस्ट मिनट भानु, थोड़ा सा नेटवर्क इशू आ रहा है, एक सेकंड ना। ओके। अच्छा, आपकी साइड से, हमारी साइड से हिमांशी गुरनानी आई है। मैं एक बार फिर से मैसेज सर्कुलेट कर दिया है मैम ने, करते हैं अभी। देखो एक बार कोई आया क्या? सुन, बोला तो है कि एक्सेप्ट हाँ, रिक्वेस्ट। शिवानी। ओके शिवानी, हाँ। आपकी साइड से दीक्षा है बस, और कोई नहीं आया? ओ, हाँ बिल्कुल भाई। भानु, हमारे साइड से तो 3 लोग हुए, आप भी एक दो लोगों को और ऐड करने का ट्राई कर लो, सो इट विल बी बेटर। भानु, शैल वी स्टार्ट? ओके।
So, hello everyone. Myself Om Jain from ESL School of Economics, JVL Vishwavidyalay. I am a designated secretary and chief executive officer in my ESL, and my team members are Ritika Sahu, Shivani Lashkari, and my members are Himanshi Gurnani and Soumya Kataria. Guys, please introduce yourself. Ritika. Hello everyone, myself Ritika Sahu and I am currently doing MBA second year and in the ESL I am the additional secretary. हिमांशी एंड सौम्या शिवानी को थोड़ा थ्रॉट में प्रॉब्लम है एंड शी इज नॉट इन प्रॉपर एम्बियंस सो शी नॉट एबल टू ऑन द ऑडियो. Hello everyone, I am Himanshi Gurrani. I am currently pursuing BA Economics Honors I'm in first year, and I recently became a member of the R&D department of ESEL. Nice to meet you all. सौम्या, योर इंट्रोडक्शन. Okay. Hello, everybody. This is Soumya Kataria, and I'm pursuing BA Economics Honors. It's my second year here, and hello, everyone. Hi, I am Bhanu Prakash. Hello, we are JCK Innovators team representing the entrepreneurship cell of JC Camor. It's great to connect with your team, School of Economics and Devi Ahilya Viswavidyalay, Indore. We are here to exchange ideas and learn from each other while discussing our progress on NEC task. Uh, our team member, uh, our team member Diksha Bharti or Nargi Sara is available on this net. ओके, इनके साइज इंटरेक्टिव नहीं लग रहा थोड़ा. दीक्षा, नरगिस, मैम प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू आवर टीम. Hi everyone, my name is Nagis Ara and I'm from JEC Camor. I'm the member of ACEL. Thank you. Like दीक्षा भारती थोड़ा तबीयत ठीक नहीं इसी वजह से. ओके, नो वरी. सो मानो लेट्स स्टार्ट. ये बताइए कि आपकी टीम, जैसे एज वी डिस्कस अर्लियर कि आपकी टीम में कितने मेंबर्स हैं, एंड तो आप वैसे कंटिन्यू करें कि डायरेक्ट हम बेसिक टास्क पे ही डिस्कस करें. हाँ हाँ आपने अवनी इज आल्सो ज्वाइन. जस्ट अवनी, प्लीज इंट्रोड्यूस कर दो अपने आप को एक बार. अवनी, am I audible? Yes, Om. Please introduce yourself. Hello everyone. I'm Apni Jain, working as an additional secretary at ECEL DVB North. Thank you. Gargi is also joined. Gargi, please introduce yourself and then we Yeah, start. yeah. Hi everyone. Good evening. So Gargi this side, I am pursuing B. So which meeting is this? Just give me a second. Yeah. So good evening everyone. Gargi this side. I'm pursuing my BA Economics honors from School of Economics, and this is my second year. And I have been a part of ESEL before in my previous year, and now I have been promoted to joint secretary at ESEL. So yeah, that's it about me, and it's great having you all here. thank you all of you. Okay. Thank you, Gargi. हाँ भानु, बताइए आपकी टीम फॉर्मेशन और आपका टीम कैसा है.
मतलब कैसे चीजें अमन, वर्क हो रही हैं। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। अमन कुमार भी यार। Aman, am I audible? Please introduce yourself. Like कुछ okay. ओके, नो नो इशू Like अमन। hmm, आप बता दो Aman भानु थोड़ा सा इनके बारे में। मेंबर है टीम मेंबर्स हैं अमन अमन कुमार, और ये स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं स्टार्टअप सेल के। ओके, सो आप ऐसे स्टार्टअप कुछ प्रमोट कर रहे हैं अपने कैंपस से हाँ, एंड फंडिंग फंडिंग भी होता है, प्रोवाइड प्रोवाइड करते हैं होता क्या? है। तो लाइक कितने स्टार्टअप अपने आपने एस्टेब्लिश करे और लाइक प्रमोट कर लिए स्टार्टअप अभी कमिंग तक? बहुत सारी मीट्स वगैरह होते हैं, स्पीकर्स इनवाइट किया जाता है। अच्छा, मतलब एक एजुकेशन एंड इनोवेशन आपने एक डिपार्टमेंट रेडी करा है, तो उसमें आप ये सारी चीजें वर्कशॉप्स प्लान करते हैं। ओके, we also have a education department from UTD level also. ESL is also part of the that. तो आप आपका ये ओन है कि आपके कॉलेज या डिपार्टमेंट का ही पार्ट है लाइक ये स्टार्टअप को कॉलेज प्रमोट का करना ही एंड पार्ट है। वर्कशॉप कराना? हम लोग बिहार से हैं। बिहार स्टार्टअप पोर्टल जो बिहार का हम्म। है, उसके अंदर ये सारी चीज़ें चल रही हैं। और जैसे हम लोग एनईसी के थ्रू अभी ज्वाइन किए हैं, एज ए टीम लीडर मैं ज्वाइन किया हूँ। और जो भी अभी टीम मेंबर्स हैं, जो भी वर्क असाइन हो रहा है उसके अंडर वर्क हो रहा है। ओके, सो मतलब आप अभी हाँ हाँ। ये तो गवर्नमेंट का है ना, गवर्नमेंट बिहार का। स्टार्टअप आई थिंक। सो उसमें मतलब आप रजिस्टर्ड हैं, सारी टीम फिर वहाँ इंफॉर्मेशन सर्कुलेट करते हैं, जिनका पिच होता हाँ हाँ हाँ, होगा तो बिल्कुल। उनको फिर फंडिंग्स मिलती होगी एंड प्रमोशन कुछ पैसे। ओके, सो कोई सस्टेनेबिलिटी और एक थोड़ा टेक रिलेटेड है डिपार्ट डिपार्टमेंट हाँ, साइंस एंड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी से जैसे एक इल्यूमिनेट टास्क हम लोग को था, जो कम्प्रिहेंसिव टास्क में। तो उसमें डीएसटी के गाइडलाइंस के अनुसार जो था, हम लोग को नहीं कंडक्ट कर सकते थे, क्योंकि उसमें रजिस्ट्रेशन फ़ी थी समथिंग 640 करके। तो हम लोग को ऐसा अलाउ नहीं किया जाता है, जो कोई भी इवेंट हाँ, अगर किसी भी तरह का फीस डिमांड कर रही है, तो वो हम इवेंट एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं। अच्छा, तो कॉम्प्रिहेंसिव की डेट अभी 10 दिसंबर तक थी, तो आपका वो छूट हाँ हाँ, गया होगा यूरेका फिर हो तो। गया। एरुका आपका हुआ है कंप्लीट? वी गॉट ओके, 180 दैट्स पॉइंट्स आउट ग्रेट। ऑफ 200। हमारा कॉम्प्रिहेंसिव और आप लोगों का कितना पॉइंट्स रहा? हमारा एरुका में मार्क्स अभी हमें मिले नहीं हैं एंड कॉम्प्रिहेंसिव हमारा भी छूट गया, क्योंकि रजिस्ट्रेशन फीस हमें भी अलॉट नहीं हुई थी। सेम इश्यू से गवर्नमेंट कॉलेज में ये आता कि जो फंड्स हैं वो कहाँ पे प्रॉपर यूटिलाइज हो रहे कि नहीं, प्रॉपर अथेंटिकेशन ये चीज़ें नहीं हो पाई थी। लाइक जैसे मेरी फ़ोन पे सो आपसे बात हुई दैट्स थी, जो व्हाई द आप टास्क सेकेंड इज। टाइम पार्टिसिपेट, इससे पहले भी आपने पार्टिसिपेट किया है इसमें। तो आप बता सकते हैं जैसे टास्क में जो क्या क्या चेंजेस जी जी। था। जैसे जैसे हम लोग ने देखा अभी का टास्क और जो पिछले ईयर का जो था, उसमें क्या कुछ चेंजेस थे या सेम ही है? नहीं, मोस्टली बहुत सारी चीज़ें उन्होंने चेंज करी हैं। जैसे पहले सिर्फ ये चार जो थे, जैसे बोर्ड वो बने, टैक्स, प्रिलिमिनरी, इग्नाइट, वेंचर एंड कॉम्प्रिहेंसिव, ये हेडिंग्स तो सेम है। इसमें से अंदर कुछ कुछ टास्क चेंज है। जैसे प्रिलिमिनरी तो एज इट इज सेम है, इसमें कुछ चेंजेस नहीं हुए। इग्नाइट में कुछ इंट्रोड्यूस नया हुआ है। एंड जैसा हम टीम मीटअप कर रहे हैं अभी, तो ये एक नई चीज है। ये इनका एजेंडा ये भी है कि वहाँ पे जब हम आईआईटी बॉम्बे विजिट करते हैं, तो वहाँ पे जब टीम फॉर्मेशन और टीम एक्टिविटीज होती हैं, तो वहाँ पे इनको इंटरेक्ट करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती। तो अभी से जैसे हमारा इंटरेक्शन हो रहा है, हम बात कर रहे हैं, तो वी आर विथ कनेक्ट है हम अभी से पहले से। तो अर्लियर वी आर कनेक्टिंग विथ ईच अदर। तो आगे अगर हम वहाँ आईआईटी बॉम्बे दोनों टीम जाती हैं, तो
सबसे पहला प्रेफरेंस हम आपको देंगे और आप हमें देंगे, ये हमारा म्यूचुअली पहले से डिसाइड हो जाएगा। जस्ट मोहित is from our team is joined. Mohit, bhai, please introduce yourself. Hi guys, my name is Mohit Suthar and I am the head of department of marketing and PR of ECL थैंक यू SOE. मोहित। Thank you, Bhanu Prakash. Okay. लाइक आप So, लोग स्पॉन्सर के बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं, क्योंकि हम continuing लोग that, ना उस टाइम एग्ज़ाम्स की वजह से लाइक हम लोग फाइनल ईयर में हैं, तो 6 सेम का एग्ज़ाम्स की वजह से गेट ए स्पॉन्सर टास्क हो नहीं पाया। तो आप लोग थोड़ा स्पॉन्सर्स के बारे में बता सकते हैं, आप लोगों को स्पॉन्सर्स कैसे मतलब मिले, स्टार्टअप कंपनी या लोकल? सी हमारे से डिपार्टमेंट के कुछ कुछ फंड्स रहते हैं, हम वो यूटिलाइज कर लेते हैं। एंड सेकेंडली जो चीज़ें हैं हमने लाइक फंड्स लाइक कुछ चीज़ें अभी प्लान इतनी करी नहीं है, वी हैव बिट फंड्स और सारी चीज़ें मैनेज हो जाती है। सो स्पॉन्सरशिप के हमारे पास 2 कॉन्टेक्ट हैं, दे आर रेडी टू गिव अस स्पॉन्सरशिप, पर उन्हें इवेंट शोकेस करना, इन सारी चीज़ें प्लान करना ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि हमारे भी असाइनमेंट्स और इंटरनल्स अभी कंटिन्यू चल ही रहे हैं। आई एम मी, शिवानी, मोहित एंड रितिका आर द फाइनल ईयर ऑफ MBA एंड अवनी इज फ्रॉम MA, तो उनका भी फाइनल ईयर है अभी। तो वी आर टोटली एंगेज ऑन स्टडीज। गार्गी गार्गी हैं, उनका थोड़ा उनके भी एग्जाम्स है, पर शी इज बिट रिस्पॉन्सिबल ऑल ओवर अस, सो वो थोड़ी चीज़ें मैनेज कर लेती हैं। बैकएंड पे, हाँ बैकएंड पे हम अगर अवेलेबल नहीं हो पाते तो। And we, regarding the sponsorships, we can also target some institutions like coaching institutions, or they want some promotional activities in our college. So they sponsor some money for us. If you want some sponsorship and you say earlier that you have organized some meet and the workshops, so you can also target some institutions like that who wants some promotional activities in your college. So through that, it could also be a one idea for you, ओके। Bhanu. And भानु, उसमें आप ये भी कर सकते। अच्छा मोहित प्लीज बोलो भाई। uh, and you will also target the companies that will be मतलब कि जो आप इवेंट करवा रहे हो उससे रिलेटेड हो, जैसे कि आप कोई एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड या फिर कोई जैसे डिबेट या पिच कंपटीशन करा रहे हो तो आप एंटरप्रेन्योर या कंपनी को लेके आ सकते हो, या फिर एनजीओज रहते हैं जो कि इन चीज़ों पे काम करते हैं तो उनको भी टारगेट कर सकते हो स्पॉन्सरशिप के लिए। ओके मोहित। ट्वी- भानु, इसमें अपन एक चीज और, आपका जैसे लिंक्डइन का पेज है तो हाँ, आपके रेगुलर ब्लॉग्स वो पोस्ट होते हैं। स्टार्टअप कोऑर्डिनेटर हैं, जो भी सो उसमें अभी जैसे ब्लॉग का, जैसे हाँ, लिंक्डइन ब्लॉग भी था, तो वो भी हम लोग पोस्ट किए हैं। और जो भी लोकल, जो भी जिस तरह भी तरह के, जैसे लाइक जैसे स्कूल्स हो गए, स्कूल्स में जाके बताना, या किसी तरह का मीट हो रहा है तो उससे रिलेटेड पोस्ट होता है रेगुलर। ओके। ये तो मतलब थोड़ा सा अप्रोच आप निश निश तरफ कर रहे हैं, निश मार्केट टाइप। आप अगर स्कूल्स में विजिट करेंगे ना, तो आपको सिर्फ स्टूडेंट एंकरेजमेंट मिलेगा, स्टूडेंट सिर्फ अट्रैक्ट होंगे आपकी तरफ। स्पॉन्सरशिप थोड़ा डिफिकल्ट होगा। आप इसमें ये एक प्लान कर सकते हैं कि जैसा मोहित ने मेंशन करा, एनजीओस हैं और सम स्टार्टअप ऑर्गेनाइजेशन है, जो ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टअप को प्रमोट करना चाहती है विद देयर ब्रांड नेम और विद देयर गुडविल। सो उससे ये बेनिफिट मिलेगा आपको कि एक स्टैब्लिश ब्रांड है जो, वो अगर आपके थ्रू वो प्रमोट हो रहे हैं, तो वो इवेंचुअली वो अपने पेज पे भी डालेंगे, तो उससे आप भी प्रमोट होंगे। सो इस पे आप ये ट्राई कर सकते हैं कि उससे फंड रेज होना थोड़ा चांसेस बढ़ जाए आपके भी। ओके। और पिचिंग कंपटीशन वगैरह करवा रहे हो तो आप एंजल इन्वेस्टर को भी टारगेट कर सकते हो इफ कॉन्टेक्ट में है आपके। लाइक पिचिंग कंपटीशन जैसे यूरेका का कंडक्ट और आप लोगों ने भी कंडक्ट करवाया ना?
हमारा कंडक्ट, हाँ कंडक्ट हुआ था, पर उसमें जो मेंबर थे वो उस टाइम पे अवेलेबल ही नहीं थे, जिन्होंने पिच कर, जिनको वहाँ पे एज ए प्रेजेंट करना था रुका, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाया अभी। ऑल्दो हमने सबमिट कर दिया है उसे थोड़ा बहुत प्लान करके, पर उसमें मार्क्स हमें मिले नहीं है अभी तक एज सच, मतलब अभी वो चेक ही नहीं हुआ है हमारा, है ना मोहित? ऐसे ही हुआ ना अपना सेम, अभी तक चेक हुआ क्या अपडेट? हेलो मोहित, आई एम ऑडिबल? हाँ हाँ, मैं ये बोल रहा था कि अभी तक वो उन्होंने चेक नहीं किया, और वो 10 तारीख तक अभी करेंगे भी नहीं। अच्छा ठीक है भाई। हाँ, 10 तारीख के बाद में वो सारी चीजें चेकआउट करके फिर वो मार्क्स दे अकॉर्डिंगली टास्क के देंगे। लाइक ओके। आप लोग इससे पहले भी ऑर्गेनाइज करवाए हैं, और जैसे कितने जैसे पार्टिसिपेंट को अट्रैक्ट कैसे किया है, जैसे हम लोग यूरेका ऑर्गेनाइज करवाए, तो इसके लिए हम लोगों ने क्लास में जाके बता दिया, और ग्रुप्स में भी बताया जहाँ इस तरह का इवेंट हो रहा है, तो मतलब ज़्यादा पार्टिसिपेशन आ नहीं पाया, तो आप इसके लिए कुछ बता सकते हैं? नहीं, इसमें तो आपको मतलब क्लास टू क्लास जाके एंगेज करना पड़ेगा। हमने एक अभी इवेंट करा था पिचिंग कंपटीशन विद पोस्टर मेकिंग, सो हमने ऑलमोस्ट 122 कैंडिडेट्स एनरोल करे थे, सिर्फ एमबीए बैचेस में, जो फ्रेशीज आए थे हमारे जूनियर्स उनकी तरफ से। तो ये मतलब एक पूरी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, आपकी अगर टीम होगी, जैसे मोहित है तो मोहित ने सारा टास्क लिया था, सबसे अच्छी कैंपेन्स उन्होंने रन करी, टीम कोऑर्डिनेशन लगा। जैसे अवनी जैन थी तो अवनी जैन प्रॉपर रिपोर्टिंग करती थी, गार्गी थी वो गार्गी ये देखती थी कि कहाँ पे मैसेज प्रॉपर सर्कुलेट हो रहा है कि नहीं, किसी को कुछ प्रॉब्लम आती है तो रितिका साहू एंड शिवानी एंड आवर इवेंट एंड वर्कशॉप हेड उनसे कांटेक्ट में रहते थे कि कोई भी अगर इशू आ रहा, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरीज हैं, तो वो तुरंत रिजॉल्व हो। अगर ये चीज रिजॉल्व नहीं हो पाती ना, तो फिर कैंडिडेट का इंटरेस्ट थोड़ा सा हट जाता है वहां से, कि मेरी क्वेरी रिजॉल्व नहीं हो रही तो हाउ कैन आई पार्टिसिपेट ऑन दैट इवेंट। तो ये और आप, And बेसिकली ये रहता है कि अगर आप किसी को भी ऐसे कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट लेना चाहते हो, तो आपको ऐसे टारगेट को ऑडियंस करना पड़ता है जो कि थोड़ा नई हो। तो बेसिकली अगर जैसे ही तुम्हारा सेशन स्टार्ट होता है, तो उस टाइम पे नए स्टूडेंट आते हैं, तो उनको टारगेट करने पे ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स आ जाते हैं, क्योंकि कुछ टाइम कॉलेज में बिताने के बाद में जो स्टूडेंट होते हैं उनका इंटरेस्ट हट जाता है बेसिकली। तो चीज़ें स्टार्टिंग टाइम पे करते हैं तो स्टूडेंट भी इंगेज होने लगते हैं उस चीज़ों में, और ज़्यादा पार्टिसिपेशन आता है। and we can also run a online campaigning like through using social media. If you have any ESL page on your Instagram, then you can also use that and create a hype about that event. That could also be worked there. ओके। और जो भी इंस्टाग्राम स्टोरी वगैरह लगाते हो उस पे जितने भी टीम मेंबर है उन सभी को मेंशन कर दोगे, तो वो अपनी अपनी स्टोरी लगाएंगे, तो इससे क्या है, रीच वो बेसिकली बढ़ती ही है। ओके, हम लोग ये इम्प्लीमेंट करेंगे नेक्स्ट टाइम। एंड अभी हमारे, ओके, एंड अभी जैसे मोहित ने ये चीज मेंशन करी, तो इससे एक और चीज इन न्यूमेरिकली बताएं तो हमने मतलब विद इन अ वीक 1K से, मोहित 21K हमने रीच करी थी ना टीचिंग के टाइम पे, एंगेजमेंट में। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो विद इन अ 20 वीक के की हमारी रीच हुई वन, थी हमारे पेज की। हाँ, तो 21K 1K से हमने विद इन अ 1 वीक रीच करी थी। हमें इंस्टाग्राम से भी अप्रिसिएशन इस बात का आया था कि हमारा पेज थोड़ा एंगेजिंग हो रहा है, अट्रैक्टिव, वेरिफिकेशन के लिए भी उन्होंने अप्रोच करा था सामने से, ये सारी चीजें वहां से भी हुई थी। तो आप भी ये स्ट्रेटजी ट्राई करो, एंड वी कैन ऑल्सो कोलेबरेट ऑन दैट ऑल्सो। अगर आइडियाज आपके पास हैं तो हम म्यूचुअली एक पोस्ट क्रिएट करके दोनों उसको सर्कुलेट कर सकते हैं। सो इससे ये होगा कि हमारी ऑडियंस भी आपके पेज पे आएगी, तो आपकी रीच और बढ़ेगी। हाँ। आपकी अभी टीम से कंटेंट एंड इन्फोग्राफिक्स का कोई मेंबर है? सारे ही चले सब गए? आते। अच्छा,
भानु, एक एक दो मेंबर्स को अगर आप ट्राई करो तो ऐड कर लेते, क्योंकि यहाँ सारे मेंबर्स हमारे ही दिख रहे हैं, हाँ हाँ, तो वेट वहाँ वन एनईसी में सेकंड। प्रॉब्लम होगी। एक बार आप ट्राई कर लो, तो फिर शैल वी टेक अ पिक्चर। तब तक आप मेरे को ये बताओ, जो लिंक्डइन ब्लॉग्स वगैरह तो उसके लिए किस तरह का आपने टॉपिक चूज किया, थीम वगैरह समथिंग? उसके लिए देखो, बेसिकली हमारी थीम ये है कि कंपनीज जो इवेंचुअली न्यू स्टार्टअप होती हैं, ठीक है, यूनिकॉर्न्स होती हैं, उनके ऊपर व्लॉग्स बनाना, हाउ दे आर सीईओज एंड द को फाउंडर थिंकिंग देयर स्ट्रेटजीज। सो वो सारी चीज़ों पे करो और उन्हें टैग कर दो, तो वहाँ से एंगेजमेंट आती है। एंड कभी कभार तो ये भी होता है कि अगर आप सीईओज को और को फाउंडर्स को टैग कर रहे हैं, तो अगर उन्हें कुछ इम्प्रेसिव चीज़ें लगी, तो वो उसको रीपोस्ट भी करते हैं, तो उससे भी एंगेजमेंट आ जाता है। बाकी और कुछ, मोहित प्लीज शेयर योर थॉट्स ब्रो। बेसिकली लिंक्डइन पे जो चीजें है वो हैशटैग के साथ में काम करती है। अगर आप पोस्ट के नीचे प्रॉपर हैशटैग डालते हो और एनडीसी को मेंशन करते हो, तो वो चीजें ज्यादा तो नहीं कर सकता, बट जो बेसिक नॉर्मल लीड आती है उससे ज्यादा वो इंगेजिंग हो जाती है। बेसिकली इनके अंदर हैशटैग का इस्तेमाल होता है, और वो आप प्रॉपर करने के लिए चैट जीपीटी या एआई का इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, आप कोई और क्वेरीज भानु तो आप वो भी पूछ सकती हो। फिलहाल तो नहीं है। आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस वगैरह समथिंग थ्री? हाँ भानु, मैं ये पूछना चाहता, और ई आपकी सेल का वेबसाइट बनी हुई है स्पेसिफिक क्या वेबसाइट तो ई हम लोग सेल ट्राई की? कर रहे थे, मतलब बना तो नहीं है, गूगल साइट से बस हल्का सा थोड़ा ट्राई कर रहे थे। ओके, गूगल साइट से ट्राई कर लेते। तो उसकी होस्टिंग वगैरह का सोचा है कुछ? हाँ, वो मैंने होस्टिंग डोमेन का? उसके लिए मैंने अप्लीकेशंस दिए हैं, उसमें बोल रहे हैं थोड़ा टाइम लगेगा। ओके। एंड अभी आपका ईसेल जो है कितने सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, मतलब लाइक सारी कितने जगह मतलब प्लेटफॉर्म्स पर हो है आप? हैंडल, जैसे इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, फेसबुक, यूट्यूब पे भी है। हाँ हाँ, ओके। ट्विटर हैंडल भी है। आपका ट्विटर हैंडल है क्या? ओके, तो ट्विट यूट्यूब में कितने सब्सक्राइबर हैं, इंस्टाग्राम में कितने यूट्यूब का तो फॉलोवर्स हैं, मैंने ये चेक बता नहीं सकते किया। हैं आप? इंस्टाग्राम का आई थिंक 200 के अप्रॉक्स होगा। ओके, आप एक काम करिएगा, आफ्टर मीटिंग आप अपने हाँ हाँ, सारे मैं सोशल सेंड कर मीडिया दूंगा। प्लेटफॉर्म के लिंक शेयर कर दीजिएगा, हम भी कर देंगे, सो आवर टीममेट्स फॉलो कर तो लेंगे सारे। मैं ये पूछ रहा था, आप ट्विटर पे किस प्रकार से वो करते हो काम? ट्विटर ज़्यादातर यूज़ लिंक्डइन और इंस्टाग्राम हो रहा है अभी, जो भी मतलब पोस्ट। हाँ, वो बेसिकली तो उसी का इस्तेमाल होते हैं, बट जैसे मैंने वेब स्क्रैपिंग की थी, तो उसके अंदर मोस्ट ऑफ ईसेल का ट्विटर हैंडल बना हुआ है। तो हमारी ईसेल का ट्विटर हैंडल नहीं है, तो मैं सोच रहा था कि जैसे हम क्रिएट करके आगे के लिए थोड़ा आसान कर दे, तो उस पे आप चीजें किस प्रकार से रन करते हो? नहीं, इसके बारे में मेरे को आइडिया नहीं है। ओके मैम, एनीवन have any question regard to Bhanu or the teammates? Avni Gargi? No, no, not as such. Everything was cleared basically. So camera on कर हाँ, लेते, एक screenshot लेते and then we'll wind up. Okay.
हिमांशी. Yeah, just a second. Sorry guys, there is some technical issue here. No problem. ओके, स्क्रीनशॉट हो गया. आपका म्यूट है माइक. शिवानी कैमरा ऑन कर लो एक बार. एंड नरगिस. चलो डन. डन गाइस. सो भानु वाइंड अप करें, कुछ और नहीं, क्वेरीज या मेरे डिस्कशन क्वेरीज करना है? क्लियर हो चुके हैं. कंक्लूड करते हैं. ओके. सो एज वी डिस्कस, हमारा क्या क्या, एक लिंक्डइन का डिस्कस हो गया कि लिंक्डइन कैसे एंगेजमेंट होगी, इंस्टाग्राम एंड एनईसी टास्क. हम्म. हिमांशी एंड सौम्या, एक बार Yes. अपनी Yes. अपनी साइड से सारी चीज कंक्लूड कर दो, क्या क्या चीज आपने मेंशन करी है. Okay. So during our Instagram and Twitter reach, we should use the correct hashtags and correct pitching on Instagram to engage with audience, and then collaborating with each other for more audience from other person's audience as well as our audience. ओके. एंड सेकेंडली द थिंग अबाउट इट, वेबसाइट आपकी भी क्रिएट नहीं है, हमारी भी क्रिएट नहीं है. सो बानू, आपने डोमेन परचेज करा है या होस्टिंग कर, कैसा करा? मोहित, एक बार तुम लीड ले लो, उस पर डिस्कस कर लो. हाँ हाँ हाँ. फिर मैं डोमेन परचेज़ नहीं किया हूँ. वो मैंने कॉलेज को बताया जहाँ इस तरह से हम लोग बनाए वेबसाइट, और हो सकता है डिज़ाइन कर सकते हैं, बट अगर कॉलेज परमिशन देती है तो फिर हम देखते हैं. नहीं, यूएक्स यूआई तो कंप्लीट हो गया होगा ना आपका? यस मोहित, क्या? यूएक्स यूआई तो हाँ हाँ, कंप्लीट वो हो हो गया गया होगा ना, मोहित. यूजर इंटरफेस. ओके. तो जैसे आप गूगल साइट पे बना रहे हो तो उसके अंदर आता है www.google हाँ साइट स्लैश जो भी आपकी साइट है वो, तो वो जो लिंक पब्लिश हाँ वाला हाँ, शेयर बिल्कुल, होता है वो मैं शेयर कर शेयर कर दूंगा. सकते हो हमारे साथ? ओके ओके, थैंक यू. एंड होस्टिंग और डोमेन परचेज कहाँ से करने की सोच रहे हो आप? इसके बारे में अभी नहीं पता है मेरे को, आप बताओ. अच्छा. नहीं, जैसे कॉलेज का जो डाटाबेस होता है वहां से भी आप होस्टिंग करवा सकते हो, बट बेसिकली आपको डोमेन चाहिए रहता है. तो उसके अंदर आपका कॉलेज क्या कुछ कर रहा है या फिर आप अपने नहीं, एंड मैं से कॉलेज करोगे को फिर हैंड ओवर एंड में? करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने इसके बारे में बताया. जहाँ अगर कॉलेज मतलब जैसे मैं फाइनल ईयर में हूँ, तो फिर तो इसके बाद कोई भी अगर टीम करना चाहे तो उसको एक्सेस हाँ हाँ मिलना हाँ. चाहिए. अगर मैं मेरे एंड से होगा तो फिर ट्रांसफ़र में प्रॉब्लम आएगा. इसी वजह से मैंने सोचा जो कॉलेज ही की तरफ से हो तो बेटर है. नहीं तो फिर जो आपकी मेल है ऑफिशियल ईसेल की, तो उससे नहीं बना रहे आप, या फिर अपनी पर्सनल मेल से बना रहे हो नहीं, वो अभी पर्सनल मेल से मैंने बनाया. वेबसाइट डेवलपमेंट? अच्छा.
तो उसको पर्सनल से उस पे शिफ्ट कर दो ना, ताकि आप अगर इन फ्यूचर किसी को हैंड ओवर भी करते हो तो उसके पास हाँ मेल मैं आईडी कर से दूंगा। डायरेक्ट एक्सेस रहे। हाँ, ओके, थैंक यू। मोहित, ये एक अपन ने करा था ना कि जो अपनी डीएवी यूटीडी की वेबसाइट का आईटी डिपार्टमेंट था उनसे बात करके अपनी पेज का वो करा था रजिस्ट्रेशन, वो क्या था एक बार एक्सप्लेन कर दो इन्हें, अगर इनके पास भी वैसा हो तो। अ, जैसे हमारे कॉलेज का क्या है, जो यूटीडी डीएवी का यूटीडी है, उसका जो आईटी डिपार्टमेंट है, वहाँ पे हमने जैसे अप्रोच लगवाई थी हमारा जो मेंटर टीचर है उससे, तो उन्होंने कहा हम देखते हैं, पहले आप पूरी वेबसाइट डेवलपमेंट करके लेकर आओ। तो हमारी वो अंडर द डेवलपमेंट है वेबसाइट। तो उसके बाद में वो अगर पॉसिबल हो सकता है तो हमारा जो कॉलेज की वेबसाइट है वहीं पे उसका जो हाइपरलिंक डलता है, और जो लिंक डलते हैं वो सारे डल जाएंगे ऑफिशियल साइट पे, वेबसाइट की, कॉलेज हाँ के। एक्चुअली तो हम लोग वहां ने से वो यही फिर सोचा था, रिडायरेक्ट जो हो जो जाएगी। कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट है उसी में अगर ऐड पेज करके स्टार्टअप करके एक रहेगा तो काफ़ी अच्छा हम्म। रहेगा। अलग से फिर वेबसाइट बनाना और फिर उसको थोड़ा सा ये सही रहेगा आइडिया। हाँ, तो हमने भी बेसिकली यही सोचा है। और अगर कॉलेज अप्रूव कर देता है डिजाइन को, तो इन फ्यूचर अगर वो सेपरेट आइडेंटिटी बन जाए इसे, मतलब कि अपने बुस्ट पे चली जाए, तो फिर वो अलग भी हो सकते हैं ओके। उस चीज से। हाँ, ओके। ओम। हाँ, वाइंड अप कर लेते, सारी चीज तो हो गई। ओके बाय। चलो, नाइस टू Okay, सी मीट यू यू nice to गाइस। गाइस। have, nice to meet you थैंक यू। guys. Good. गुड नाइट। Yeah, it's great. Good थैंक night. Bye bye. यू। Thank you all. थैंक Thank यू। you, all of you.